ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان محافظ۔ ملازم نے بستر کی طرف اشارہ کیا۔ بستر مجھے بلا رہا تھا اور پورے جسم میں ایک میٹھی سی تھکن تھی۔ ملازم نے پانی کے بارے میں پوچھا۔ میرے انکار پر اشارے سے کھانے کا پوچھا۔ بابا اب تم جا سکتے ہو، میں نے اشارے سے جواب دیا اور سر جھکائے وہ چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور بستر پر ٹھیر ہو گیا۔ اس کے بعد جو نیند آئی تو میری آنکھ دروازہ بجانے سے کھلی تھی۔ چند لمحے تک میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ میں کہاں تھا۔ پھر مجھے یاد آیا تو میں جھٹکے سے اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے سرجی کھڑا تھا اور اس کے پاس میرے سامان کے تھیلے تھے۔ اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور پھر اندر آ کر سامان میز پر رکھ دیا۔ رات کیسی گزری؟ شاندار، میں نے کہا۔ بہت دنوں بعد چین کی نیند سونا نصیب ہوا تھا۔ ساری تھکن اتر گئی۔ میں نے انگڑائی لی۔ سرجی بولا تم خاصی دیر تک سوتے رہے ہو؟ اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے ہیں۔ نہیں، میں نے یہ بے یقینی سے کہا۔ لو دیکھو۔ اس نے کھڑکی سے پردے ہٹا دیے اور نیم تاریک کمرہ ایک دم روشنی سے بھر گیا۔ میں نے گھڑی دیکھی، سچ مچ 2 بج رہے تھے، یعنی میں 10 گھنٹے تک سوتا رہا تھا۔ گھر میں کتنی ہی دیر سے سوتا مگر صبح اپنے وقت پر میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ وہاں حسن علی کا خوف تھا اور آج میں اس سے بے نیاز سویا تھا۔ اس کا اور مہاپارا کا خیال آتی میرے سینے میں جیسے کانٹا سا چپ گیا۔ کیا میرے ساتھیوں کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن وہ اس طرف آئے تو ہم یقیناً ان کا پتہ چلا لیں گے۔ یہ بتاؤ تم غسل کرو گے؟ میں پانی گرم کرا دیتا ہوں۔ نیکی پوچھ کر نہیں کرتے، میں نے بے ساختہ کہا۔ سکون کی نیند کی طرح میں غسل کو بھی ترس گیا ہوں۔ لیکن کیا یہاں کافی ملے گی؟ کافی تو نہیں، البتہ سبز چائے بھی بنوا دیتا ہوں۔ فی الحال تو گرین ٹی چلے گی۔ میں نے اپنا بیگ کھول کر اس میں سے صاف ستھرے کپڑے نکالے۔ سامان پورا لگ رہا تھا، حتیٰ کہ سائمن کا میڈیکل بکس بھی تھا۔ میرا بیگ خوش قسمتی سے کھائی میں گرنے سے بچ جانے والے خچر پر تھا، ورنہ میرے پاس تن کے کپڑے رہ جاتے۔ سرجی نے گھنٹی بجا کر ملازم کو بلایا، لیکن یہ دوسرا ملازم تھا، بلکہ ملازمہ تھی۔ جتنی حسین تھی اتنی ہی شوخ و شنگ نظر آتی تھی۔ اس کا نقوش ایمن کی طرح حد سے زیادہ دلکش نہیں تھے، لیکن ان سے ایک طرح کی تازگی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اس نے اوپر کرتی نما لباس پہنا تھا جسے کمر پر ایک پٹے سے باندھ لیا تھا اور نیچے شلوکا نما کوئی چیز تھی۔ سرجی نے مجھ سے کہا تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو اس سے کہہ دینا، میں باہر ہوں۔ لیکن اسے میری زبان کون سمجھائے گا؟ میں نے اسے روکا۔ فکر نہ کرو، میں نے اسے خاصی حد تک انگریزی سکھا دی ہے۔ یہ مہمان خانے میں آنے والے بیرونی مہمان کی خدمت کے لیے مخصوص ہے، آپ فکر نہ کریں۔ ملازمہ نے انگلش ہی میں کہا۔ میرا نام میمن ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ میں تو سمجھا تھا کہ میمن صرف کراچی ہی میں پائے جاتے ہیں۔ وہ ہنسی، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے لیے ایک پانی گرم کروں؟ نہانے کے لیے؟ کیوں نہیں، لیکن پہلے مجھے گرین ٹی دو۔ میرا خیال ہے اب تم مطمئن ہو۔ سرجی مسکرایا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے خیال آیا میں نے سائمن کے بارے میں پوچھا ہی نہیں۔ میمن 10 منٹ بعد گرین ٹی لے آئی اور دوبارہ اجلت میں واپس چلی گئی۔ اس گرین ٹی میں عجیب سی تازہ مہک تھی۔ میرا خیال تھا اس میں کچھ اور بھی ملایا گیا تھا۔ جب تک میں نے چائے ختم کی وہ ایک ملازم کے ساتھ دوبارہ کمرے میں آئی جس نے لوہے کے آنکڑے کی مدد سے ایک خاصا وزنی اور سرخ ہو کر دہتا پتھر پکڑ رکھا تھا۔ میمن اسے کمرے کے ساتھ ہی واقع غسل خانے کی طرف لے گئی۔ چلنے میں بعد چھن کی آواز آئی اور غسل خانے سے بھاپ کا بادل نمودار ہوا۔ میمن نے جھانک کر کہا سر آ جائیے، ورنہ پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، دوبارہ گرم کرنا پڑے گا۔ میں اٹھ کر غسل خانے میں آیا۔ اسے پتھروں کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ صاف ستھرا وسیع غسل خانہ تھا جس میں رفع حاجت کی سہولت بھی تھی۔ نہانے کے لیے لکڑی سے بنا بڑا سا ٹب تھا جس پر شاید جست کی چادر تھی۔ دہتا پتھر اس میں پڑا تھا اور ٹب کا پانی خاصا گرم ہو چکا تھا۔ پاس ایک بڑے ٹب میں سادہ پانی تھا۔ لڑکے نے آنکڑے سے دوبارہ پتھر نکالا اور چلا گیا۔ میمن تولیہ اور زرد رنگ کا صابن لے آئی تھی۔ یہ چیزیں دے کر وہ باہر چلی گئی۔ میں نے خاصے عرصے بعد غسل کیا تھا۔
गर्म पानी ने जिस्म की सारी तकन और कसल मंदी निचोड़ ली थी। सरजी मेहमान खाने के सामने वाले लान पर मेरा मुंतजिर था। उसने मेरे लिए नाश्ता बल्कि खाना वही मंगवा लिया था जो भेड़ के भुने गोश्त और खमीरी नान पर मुश्तमिल था। इसके साथ दूध वाली चाय थी, यानी अंग्रेजी चाय। साइमन का क्या हाल है? उसका हाथ काटना पड़ा। सरजी ने अफसोस से सर हिलाया, वरना खतरा था जहर बाकी जिस्म में भी न फैल जाए। अब उसकी हालत बेहतर है, 2 दिन तक उसे सुला कर रखा जाएगा, इसके बाद देखेंगे। इस पर नजर रखना, खतरनाक आदमी है, मैंने खबरदार किया। इस हालत में उसे बेबस न समझना, इसमें भी पुरस्रार सलाहितें हैं। मेरे सामने उसने एक आदमी को इसी के असले से खुदकुशी पर मजबूर कर दिया था। ओह, सरजी के होंठ सुकड़ गए थे। मैं ख्याल रखूंगा। सुनो सरजी, अगर मेरे साथी यहाँ नहीं आए हैं तो मुझे भी जल्द वापस जाना होगा। मैं इनके बारे में फिक्रमंद हूँ। आज तुम्हारी आका और जनाब सरमानी से मुलाकात होगी, वही तुम्हें वापस जाने की इजाज़त देंगे। यह मसला नहीं है, मुझे यकीन है मेरी परेशानी को मद्देनजर रखकर वो मुझे जल्दी जाने की इजाज़त दे देंगे। सरजी के तासुरात से लग रहा था जैसे वो मेरी उम्मीद से मुत्तफिक न हो, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं था। कुछ देर बाद वो मुझे वादी के बारे में बता रहा था। तकरीबन 4 मुरब्बा मील के हमवार मैदान पर फैली इस वादी में कुल 12,000 नफूस आबाद थे, जो सब के सब बरनामी कबीले के थे। इन लोगों का पेशा मवेशी पालना, रेशम के कीड़ों की परवरिश करना और लकड़ी से मुख्तलिफ इस्तेमाल की अशिया बनाना था। इस वादी में अच्छी लकड़ी के जंगलात की बहुतात थी, जिसकी ये लोग अच्छी तरह निगहदाश्त करते थे। लकड़ी काटने वाले अफराद पर लाजिम था कि वो एक दरख्त काटने से पहले कम से कम 3 दरख्त लगाकर इनकी उस वक्त तक देखभाल करें जब तक वो आज खुद बढ़ने के काबिल नहीं हो जाते। शुमाली ढलानों पर शहतूत के दरख्तों के झुंड थे। रेशम के कीड़े वहीं पाले जाते थे। बैरूनी वादी से ताजर आकर रेशम और मवेशी खरीद कर ले जाते थे। लकड़ी की मसनूआत ज्यादातर वादी ही में बिक जाती थी। बाहर से ये गंदम और चावल मंगवाते थे। बाकी हर किस्म की खुराक ये खुद पैदा कर लेते थे। खाल से जूते और चप्पलें भी खुद बनाते थे। अलबत्ता कपड़ा बाहर से आता था। लोहे का सामान भी बना लेते थे। चारों तरफ और खास तौर से शुमाल में ऊंचे पहाड़ों की वजह से वादी सरतरीन मौसम से महफूज रहा करती थी। सिर्फ दिसंबर, जनवरी और फरवरी में बर्फ गिरती थी। जब यह बर्फ पिघलती तो वादी के वस्ती हिस्से में झील बन जाती थी। इसके पानी से वो अपनी फसलों को सिंचाई करते थे। बाकी घरेलू इस्तेमाल के लिए ऊपर से आने वाले मुतअद्दिद चश्मों का पानी काफी था। मैं बेदिली से सरजी की बातें सुनता रहा तो उसने मेरी कैफियत भांप ली। अपने साथियों के बारे में इतना परेशान मत हो, मुमकिन है वो वापस चले गए हों। मेरा उस्ताद हसन अली अपने काम अधूरे छोड़ने का कायल नहीं है। अगर कोई बड़ी इमरजेंसी ना हो तो उसे लाजमन यहाँ आना था। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें जल्द अज जल्द यहाँ से वापस जाने की इजाज़त मिल जाए, बल्कि मैं एक आदमी भी साथ कर दूंगा। वो तुम्हें शुमाली इलाके की किसी बड़ी शाहराह तक पहुंचा देगा। मैं शुक्रगुजार रहूंगा। मैंने कहा, आओ मैं तुम्हें वादी की सैर कराऊं। उसने पेशकश की और मैं बोरियत दूर करने के ख्याल से तैयार हो गया। सरजी मुझे पहली मुलाकात से अच्छा लगा था। वो सीधा मगर अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से पूरी करने वाला शख्स था। फिर वो अंग्रेजी जानता था, वरना मैं कल रात ही भाग निकलता। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र हसन अली और महपारा की थी। अगर वो इस वादी तक नहीं आए तो फिर कहाँ गए थे। सरजी ने मेहमान खाने के अस्तबल से घोड़े मंगवा लिए थे। हम घोड़ों पर सवार होकर बाहर निकले। रात के सन्नाटे के मुकाबले में इस वक्त वादी में चहल पहल और गहमा गहमी साफ महसूस की जा सकती थी। वादी के इन वस्ती हिस्से में पानी की झिलमिलाहट झील का पता दे रही थी। इसके इर्द गिर्द बागात थे या खेत जिनमें फसलें लगी थी। सरजी ने पहले मुझे इस खास इलाके का चक्कर लगवाया। ये सरकारी और हुक्मरानों का रहायशी इलाका था। मुतवस्सित आबादी वादी के दूसरी तरफ थी। गोया यहाँ भी हुक्मरानों और आम आबादी में तफरीक रखी जा रही थी। इन्हें अलग अलग किया जा रहा था। इस हिस्से में मुशावरत खाना था, जहाँ हुक्मरान कौंसिल के लोग जमा होकर फैसले करते थे। खजाने और सामान की अमारत क्योंकि तमाम सराय हुकूमत के पास थे, आम लोग सिर्फ काम करते थे और इसका मुआवजा पाते थे। इन्हें कोई चीज़ फरोख्त करने की इजाज़त नहीं थी। सरजी ने मुझे बताया, सारी चीज़ें हुकूमत खुद बेचती है और इसने गरीबों और अमीरों के लिए अलग अलग कीमतें मुकर्रर कर रखी हैं। यह अच्छी बात है। जाहिर है अमीर और गरीब की आमदनी में भी फ़र्क होगा। दरमियानी वादी से कई रास्ते मगरिब की तरफ जाते थे, जहाँ हम बरनामी आबाद थे। हम बागों और खेतों के दरमियान से गुजर रहे थे। यहाँ पर सेब, खुबानी, आलू बुखारे, चेरी और नाशपाती के बागात थे। ऊपर सीढ़ी नुमा खेतों में मकई और चावल काश्त किए जा रहे थे। किसान बड़ी मेहनत और जिम्मेदारी से खेतों में मसरूफ थे। रास्ते में कई अफराद मिले जिन्होंने हाथ उठाकर मकामी सलाम किया था। वहाँ भरने के अंदाज में आह का नारा लगाते थे। जवाब में सरजी भी ऐसा करता और इसकी देखा देखी मैं भी यही नारा बुलंद करता था। जरा ऊपर गए तो लकड़ी की कमार से उछलते कूदते बच्चे बरामद हुए। ये स्कूल है।
जो मेरे 3 साथी चला रहे हैं। यहाँ हम बच्चों को मकामी ज़ुबान लिखना और पढ़ना सिखाते हैं, साथ ही इन्हें रियाजी और किसी हद तक जनरल नॉलेज भी पढ़ाते हैं। इनकी ज़ुबान का ख़त तहरीर है, हमारी आमद से पहले नहीं था। हमने रूसी तर्ज तहरीर में इनकी ज़ुबान लिखी और अब बच्चों को सिखा रहे हैं। स्कूल 4 साल से कामयाबी से चल रहा है। 5 से 10 साल के 90% बच्चे पाबंदी से स्कूल आते हैं। तुम्हें इजाज़त कैसे मिली स्कूल की? खासी कोशिश करना पड़ी थी। वो मुस्कुराया। जनाब सरमानी बिल्कुल नहीं मान रहे थे। अगर आका ने इजाज़त ना दिलवाई होती तो आज भी बच्चे खेल कूद और मवेशी चुरा कर अपना वक्त गुजार रहे होते। जाहिर है जनाब सरमानी ने मुखालफत करनी थी। मैं हंसा। हमारे यहाँ के सरमानी भी अपनी कौम को जहालत के अंधेरों में देखना पसंद करते हैं। नए आका तस्लीम और जिद्दत को पसंद करते हैं। ज़माना जितनी तेज़ी से बदल रहा है, अगर इन्होंने खुद को ना बदला तो ये पत्थर के ज़माने से भी पीछे रह जाएंगे। मैंने संजीदगी से कहा। हम आहिस्ता आहिस्ता इन्हें जदीद दुनिया से हम आहंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसमें बहुत रुकावटें हैं, मगर उम्मीद है मुस्तकबिल में वादी दुनिया के साथ चलने लगेगी। हमें अलग नहीं रहना पड़ेगा। मैंने सुना है यहाँ कोई किताब। सरजी ने अचानक घोड़े की रस्सी खींच ली। यूसुफ, आइंदा ये बात जुबान पर न लाना। हम किसी बाहर के फर्द के मुंह से इसका जिक्र सुनना पसंद नहीं करते हैं। मैंने गौर से उसे देखा। एमन ने मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई। हाँ, लेकिन यह हकीकत है। वादी के लोग इस मुकद्दस किताब के बारे में बहुत ही सास हो गए हैं। वो इसे अपनी सबसे कीमती मताज तस्वुर करते हैं। किसी अजनबी के मुंह से इसका जिक्र इन्हें जुनून में मुब्तला कर देता है, इस खौफ से कि वो इसे चुराने की फिक्र में ना हो। ठीक है, मैंने सर हिलाया। मुझे क्या जरूरत है इसके बारे में बात करने की? घोड़े अब आबादी के नज़दीक जा पहुंचे थे। ये वैसा ही गांव था जैसा कि पहाड़ी इलाकों के गांव होते हैं। अलग अलग ऊंची नीची सतहों पर बनेकर एक ही छत दूसरे का सहन होती है। गांव को मिलाने वाली ऊपर नीचे होती पगडंडियां, मगर यहाँ पे बेतरतीबी कम थी। मकान ज्यादा नजदीक बने थे और रास्ते भी ज्यादा दुश्वार नहीं थे। एक बात जो मैंने शिद्दत से महसूस की उस गांव की सफाई सुथराई और सलीका था। कहीं गंद का एक टुकड़ा नजर नहीं आ रहा था। दुर्दीवार कच्चे लेकिन बेहद साफ थे। किसी जगह गंदा पानी नहीं बह रहा था। लोग सेहतमंद और साफ सुथरे मलबूसात में थे। मजमूई तौर पर इस गांव का माहौल मुल्क के दूसरे देहात से खासा मुख्तलिफ था। यहाँ गंदगी और कूड़ा लाजमी तौर पर होता है। मैंने इस चीज़ की तारीफ की तो सरजी ने बताया, एक आम बरनामी को भी सफाई का जुनून की हद तक शौक होता है। ये अपने जिस्म, लिबास और घरों को हर मुमकिन तौर पर साफ रखते हैं। साथ ही अपने गांव और वादी की सफाई का खास ख्याल रखते हैं। ये लोग इसी वजह से अपने माहौल को आलूदा होने से बचाते हैं। इनके जंगलात, ज़मीन, पानी और हवा बेहद शफाफ है। ये बात मैंने भी देखी है। इस लिहाज से ये दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन कौम से भी कहीं आगे हैं। बरनामी बीमारियों से बड़ी हद तक नाशना है। मेरे यहाँ आने के बाद कैंसर का कोई मरीज नहीं देखा। दिल के अमराज और ब्लड प्रेशर जैसे आर्जों से ये लोग वाकिफ ही नहीं है। इस वजह से इनकी उम्रें तवील होती हैं। 110 और 120 बरस के लोग आम मिलते हैं, वो भी पूरी तरह चाकू चौबंद और काम करते हुए। बूढ़ों में से भी शायद ही कोई बेकार होता है। ये लोग कब से यहाँ हैं? सरजी सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, इसका अंदाजा तो किसी को नहीं है, लेकिन इन लोगों के आबा व अजदाद जो सिर्फ 4 अफराद पर मुश्तमिल थे और इनमें एक औरत थी। नामालूम अरसा पहले इस वादी में आए थे। इस औरत ने एक मर्द से शादी की थी और इनसे इस वादी में नस्ल इंसानी चली। इस वादी के 99% उस नस्ल ही से हैं, तुम जैसे इस तसनास को छोड़कर। इसने सर हिलाया। अगरचे हमने बरनामियों में ही शादियां की हैं, लेकिन हमारी औलाद बरनामी नहीं कहलाती है। इन्हें गैर बरनामी समझा जाता है। अलबत्ता हमारे साथ कोई इम्तियाजी सलूक भी नहीं होता। क्या तुम लोगों से पहले भी इन्होंने गैरों को अपने कबीले में शामिल होने की इजाज़त दी थी? उसने सर हिलाया। मुझे मालूम हुआ है माजी में कई बार ऐसा हो चुका है और इसकी वाहिद वजह इस कबीले में मर्दों की कम शरह पैदाइश है। हाँ, मुझे भी यही मर्दों के मुकाबले में औरतें ज़्यादा नजर आ रही हैं। वादी की 12,000 की आबादी में 7,000 औरतें हैं, यानी मर्दों की तादाद से 2,000 ज़्यादा। यहाँ पर पैदा होने वाले हर 10 बच्चों में 6 लड़कियाँ होती हैं। शरह पैदाइश भी कम है। मुश्किल से किसी जोड़े का तीसरा चौथा बच्चा मिलेगा। खुद मेरे भी 2 ही बच्चे हैं, यानी खानदानी मंसूबाबंदी में हंसा। नहीं, ये कुदरती अमर है। इसकी वजह पता नहीं क्या है, वरना अब तक इस वादी के एक एक गोशे पर इंसान होते। मैं यहाँ आया तब भी आबादी इतनी ही थी। औरतें ज्यादा होने की वजह से मसला नहीं होता है क्या? मर्दों को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत है, सिर्फ इस सूरत में जब उसकी बीवी बच्चे पैदा करने या अज़दवाजी वजीफे के काबिल न रहे। इसके अलावा किसी शख्स को दूसरी शादी की इजाजत नहीं है। कोई शादीशुदा शख्स को इश्क करने की भी इजाजत नहीं होगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ऐसा नहीं है, इश्क तो इंसान को लबे मर्ग भी नहीं छोड़ता है। यहाँ पर भी ऐसे वाकयात होते हैं और फितने फसाद की सबसे बड़ी वजह यही है।
بعض झगड़ों में सरकारी मुदाखलत की नौबत आ जाती है। इन लोगों के नकूश नामानूस होने के बावजूद इनमें दिलकशी पाई जाती है। खासतौर से औरतों के नकूश मर्दों से ज्यादा अच्छे हैं। पुरअमन जिंदगी और अच्छी खालिस खुराक की फरावानी की वजह से वादी के लोगों की सेहत बहुत अच्छी है। इनमें जिस्मानी खसूसियात नुमाया है। जिस्म तवील कामत और सडोल होते हैं। वादी में कम ही लोग सेहत के मायार से कम या ज्यादा नजर आएंगे। इसकी एक वजह यह है कि अक्सर लोग काम करते हैं। लेबर फोर्स का कुल तादाद का 50% है और काम का दुरानिया 8 से 9 घंटे होता है। खोड़े गांव की बुलंद तरीन सतह से आगे निकल गए थे। अब शहतूत के बागात और रेशम के कीड़े पालने के लिए बनाए गए लकड़ी के घरों का आगाज हुआ था। सरजी की कमेंट्री जारी थी। यहाँ पर आला मायार का रेशम पैदा होता है और वादी की सबसे बड़ी दौलत यही है। मैंने उज़्बेकिस्तान में भी रेशम साजी के मराकज़ देखे, लेकिन इनका मायार जदीद सहूलतों के बावजूद ऐसा नहीं है। शायद इसकी वजह खुराक में फ़र्क है। यहाँ का शहतूत आला मायार का है, जिसे खाकर कीड़े अच्छा रेशम पैदा करते हैं। फार्म से गुजरकर अब हम ढलानी जंगल के किनारे थे। यहाँ मुझे वैसी खुशबू महसूस हुई जैसी मेहमान खाने में महसूस थी। ये खुशबू कैसी है? इन दरख्तों से आ रही है। सरजी ने इशारा किया। ये दरख्त लंबे और गोल तने वाले थे। इनकी लकड़ी से बेशुमार चीज़ें बनाई जाती हैं। इनसे खुशबू आती है। कहते हैं कि जब बरनामी कबीले के जद्दे अमजद इस वादी में आए तो इनके पास सहारे के लिए लकड़ी थी। इसे किसी वजह से ज़मीन में गाड़ दिया और इसने रातों रात जड़ पकड़ ली। आबो हवा और ज़मीन इस दरख्त को रास आई और अब इस वादी के बड़े हिस्से पर इसके जंगलात हैं। पूरी वादी में इसकी खुशबू फैली है। घोड़े अब ढलान के साथ साथ शुमाल की तरफ जा रहे थे। शाम के 5 बज रहे थे और सूरज ने मगरबी उफ़क़ की तरफ झुकना शुरू कर दिया था। वादी में हर काम नज़्म ज़ब्त से होता है। इसके लिए हुकूमत हुक्म जारी करती है। शादी ब्याह जैसे मामलात भी सरकारी इजाज़त के बगैर नहीं होते हैं, मगर आमतौर से किसी को तंग नहीं किया जाता है। यानी मिसाली हुकूमत है। मेरा लहजा किसी कदर तंजिया हो गया था। मगर तुम उमरा के आलीशान महल्लात को क्या कहोगे? गरीब को फिर भी झोंपड़ी मिली है। आम आदमी के पास भी अच्छे और कुशादा मकान है। मकान खुद हुकूमत तामीर करके देती है। हर नए शादीशुदा जोड़े को सरकार की तरफ से सामान और मकान मुहैया किया जाता है। यहाँ ख़ानदान के साथ रहने का रवाज नहीं है। जो लोग मर जाते हैं इनके मकान हुकूमत अपने कब्जे में ले लेती है और ज़रूरी मुरम्मत के बाद इसी किसी नए शादीशुदा जोड़े के हवाले कर देती है। जो मकान बिल्कुल खस्ता हो जाते हैं इनकी जगह नए सिरे से मकान बनाती है। इसके लिए एक बाकायदा महकमा है। अगर किसी के घर को तूफान से या किसी और वजह से नुकसान हो तब भी उसे हुकूमत ही मुरम्मत करा के देती है। मैं सोचने लगा कि ये एक मिसाली निज़ाम हुकूमत है। हर सहूलत हुकूमत के ज़िम्मा है। तुम्हारे यहाँ आका का इंतखाब कौन करता है? क्या वो भी बादशाह की तरह मोरूसी होता है? एक तरह से मोरूसी कह लो। कौंसल के 12 अरकान में से किसी एक को ताहयात आका मुंतखब किया जाता है। और इंतखाब कौन करता है? ज़ाहिर है मजहबी पेशवा। उसने जवाब दिया। बहरहाल ये लोग अपने तर्ज हयात से बहुत खुश हैं। अगर इन्हें भी आज़ादी मिली तो इनकी खुशियाँ छिन जाएंगी। यह हकीकत है मेरे दोस्त। हमसे ज़्यादा खुश और मुतमईन कौम तुम्हें रोए ज़मीन पर नहीं मिलेगी। घोड़े शहतूत के वसी बागात के दरमियान से गुजर रहे थे। इन बागात के नीचे वसी मैदान में पोलो खेला जा रहा था। खासे शायकीन लकड़ी की बनी बेंचों पर बैठे मैच देख रहे थे। इसके बराबर वाले मैदान में बच्चे खेल रहे थे। चक्कर लगाते घोड़े अब दोबारा मशरकी ढलान पर सरकारी इमारत के नज़दीक जा पहुंचे थे। सरजी ने घोड़े एक सफ़ेद रंग की इमारत के सामने रोक दिए। इसे देखते ही जहन में अस्पताल का तस्वुर उभरता था। सरजी ने तस्दीक की, यह अस्पताल है दारुल इलाज। अगर ये दारुल इलाज है तो गलत जगह पर है। इसे आबादी के पास होना चाहिए था। मैंने घोड़े से उतरते हुए कहा। इसकी ज़्यादा ज़रूरत वहाँ है। वहाँ पर छोटा दारुल इलाज है। अगर किसी मरीज़ को फौरी तिब्बी इमदाद चाहिए तो इसे वहीं तिब्बी इमदाद दी जाती है। यह अस्पताल सिर्फ बड़े मामलात के लिए है, जैसे किसी को दाखिल करना हो या इसका ऑपरेशन हो। यहाँ पर ऑपरेशन भी होते हैं? मैंने हैरत से उसे देखा। हाँ, और ख़ासे पेचीदा किस्म के ऑपरेशन होते हैं। इन लोगों ने सदियों के तजर्बात को यहाँ जमा किया है। इलाज और ऑपरेशन करने का इनका अपना तरीका है, लेकिन वो मावराई तरीके से जो इलाज होता है हर मरीज़ का नहीं, बल्कि सिर्फ इन लोगों का जिन्हें जनाब सरमानी इजाज़त दें, वरना इलाज नहीं होता। जिसका मतलब है साइमन का इलाज, इसका मतलब है साइमन का आम इलाज किया जा रहा है। सरजी ने इस बात में हिस्सा लाया। तुम देख लोगे। अस्पताल इतना साफ सुथरा था जितना किसी तरक्की याफ्ता मुल्क का अस्पताल हो सकता है। इसकी दीवारें पत्थर से बनी थीं जिन पर चूना भरा था और छत लकड़ी की थी। अंदर साइमन एक अकेले कमरे में बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पड़ा था। इसके दाएं हाथ का पंजा कलाई से गायब था और उसकी जगह सफ़ेद पट्टी बनी थी। इसके जिस्म पर सफ़ेद रंग का लिबास था और चेहरे से लग रहा था कि वो पुरसकून नींद सो रहा है। इसे बेहोशी की हालत में दवा और ग़िज़ा किस तरह दी जाती है, इनका अपना तरीका कार है। ये देखो। उसने बाएं हाथ से लिबादे की आस्तीन उलट थी।
साइमन की कलाई की नस में एक सुई गई थी जिसे पट्टी से बांध दिया गया था। इसका अकबी मुंह खुला था। इससे यह दवा और खुराक इसके जिस्म में दाखिल कर सकते हैं। एक शख्स जिसने स्याह लिबादा पहन रखा था अंदर आया और उसने सरजी से मकामी जुबान में कुछ कहा। सरजी ने जवाब दिया। कुछ देर इन दोनों में तबादला अल्फाज होता रहा। फिर स्याह लिबास वाला चला गया। सरजी ने मेरी तरफ देखा। यह अस्पताल का इंचार्ज है, तुम इसे मेडिकल चीफ भी कह सकती हो। इसने कहा है कि साइमन की हालत इसकी तवक्का से जल्द बेहतर हो रही है, इसलिए इसे कल होश में लाया जाएगा। इसका जख्म जल्द भर जाएगा।